سب کو سلام. آپ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا. زوردار تالیاں پاتے ہیں. خدا کے بندوں کو ویلکم کہتے ہیں. آمین. اور میرا ایمان ہے کہ آج جس زندگی میں یہ کلام اتر گیا، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی. آپ خود آبزرو کرو گے، نوٹ کرو گے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی جو اس کو اپنے اندر لینے والا ہے، دل سے اسے جب مانے گا تو آپ نوٹ کرو گے وہ شخص آپ کو ریئل میں بدلا ہوا نظر آئے گا. جس کو آپ بولتے ہو کہ یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، اور ریئل میں ایسا ہی ہے کہ کلام جب نازل ہوتا ہے تو زندگیاں بدلتی ہیں. آمین. آج ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے گنتی کی کتاب اس کا 6 باب. گنتی 6 باب بڑے دھیان سے ہم اسے سنیں گے. گنتی 6 باب اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. کلام میں لکھا ہے خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی مرد یا عورت نذیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے تو وہ میں اور شراب سے پرہیز کرے، اور میں کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے، اور نہ انگور کا رس پیے، اور نہ تازہ یا خشک انگور کھائے، اور اپنی نظارت کے تمام ایام میں بیج سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں پیدا ہو اسے نہ کھائے، اور اس کی نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیلا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بنا ہے پوری نہ ہو، تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو پھڑنے دے. ان تمام ایام میں جب وہ خداوند کا نذیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے. وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مرے اپنے آپ کو نجس نہ کرے، کیونکہ اس کی نظارت جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہے، اور وہ اپنی نظارت کی پوری مدت تک خداوند کے لیے مقدس ہے. کلام کا پڑھا اور سنا جناب ہم سبوں کی نگاہ سے بتا. آمین. آپ سمجھتے ہوں گے کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں. آج ہم نذیر کے بارے میں سیکھنے والے ہیں کہ ایک جو نذیر ہوتا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو لفظ نذیر ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. ہمارے پاس یہ جو ہم اردو میں بولتے ہیں نذیر، اکثر لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں نذیر، تو یہ لفظ اسے ایسے ہی اٹھا کر عبرانی زبان میں ایسے ہی اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ایسے ہی اٹھا کر کہاں پہ رکھ دیا گیا؟ اردو زبان میں. اور یہ ہمارے پاس اردو زبان میں جو نذیر ہے یہ اصل میں عبرانی زبان سے ایسے ہی نذیر لے لیا گیا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو الگ کرنا، اپنے آپ کو مخصوص کرنا، یا اپنے آپ کو پاک کرنا. اور کس کے لیے کرنا؟ مطلب خدا کے لیے. کوئی بھی شخص اپنے آپ کو خدا کے لیے وہ اگر نذیر ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک رکھے، وہ مخصوص ہے، وہ الگ ہے، وہ دنیا جیسا نہیں ہے. آج ہم بہت ساری ایسی پرسنالٹی کے بارے میں سیکھیں گے کہ آپ کو بتا دوں کہ نذیر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نذیر وہ جو پیدائشی طور پر خدا نے انہیں ماں کے پیٹ ہی سے انہیں نذیر بنایا ہوتا ہے، اور ایک وہ جو دنیا میں آ کر اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں، اپنے آپ کو نظارت کے لیے دے دیتے ہیں کہ نہیں میں اپنے آپ کو خدا کو دیتا ہوں. ہاللیلویا. اور اس ایک کنڈیشن وہ ہے کہ آپ کو خدا نے پہلے سے چنا ہوا ہے. مطلب آپ جب پیدا ہونے والے تھے تو کسی خادم نے کہا تھا کہ آپ کی ماں کو یا آپ ہو تو آپ کو خدا کے خادم نے کہا کہ آپ کے جو بیٹا ہوگا وہ خدا کا خادم. اس کا مطلب کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی نذیر ہے. اور ایک وہ
जो खुद अपने आप को इस बात के लिए अलग कर लेता है कि मैंने आज के बाद खुदा के लिए या तो गाना है, या मैं खुदा के घर में साज बजाऊंगा, या मैं खुदा के घर की सफाई करूंगा, आप या मैं कलाम सुनाऊंगा, या मैं घर घर जाकर अंजीर सुनाऊंगा। आप कुछ भी अपने आप को मुकर्रर कर सकते हो, अपने आप को अलग कर सकते हो, पर उस अलग शुदा इंसान की कुछ 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 उसके लिए हदायत है, कुछ उसके लिए असूल है कि वो जो अलग इंसान है वो बाकी लोगों की तरह काम नहीं कर सकता। जैसे बाकी लोग हर पार्टी में जा सकते हैं, हर रंग रलियां कर सकते हैं, एक मखसूस इंसान, एक जो पाक, मतलब उसका नजीर का मतलब है पाक, एक जो नजीर है वो पाक होता है, और अगर वो हर काम करेगा तो उसकी पाकीज़गी जाती रहेगी। हालेलुया। अगर मैं पास्टर हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन से काम मैं कर सकता हूं और कौन से काम मुझे नहीं करने चाहिए। लिखा है कि यहाँ पे जो ये शरीयत के हिसाब से जो मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शन, जो हदायत जो हमने पढ़ी है, ये शरीयत के हिसाब से था कि वो मैं नहीं पी सकता, वो शराब नहीं पी सकता, और फिर लिखा है कि वो ताजा अंगूर नहीं खा सकता और खुश्क अंगूर भी नहीं खा सकता, यहाँ तक कि अंगूर के दरख्त से जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ वो खा नहीं सकता, और किसी लाश को भी नहीं छू सकता। यहाँ के उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, कोई उसका बड़ा करीबी रिश्तेदार भी फौत हो जाए तो वो उसको जिन दिनों में वो नजीर है वो किसी लाश को छू नहीं सकता, किसी लाश को भी नहीं छू सकता। आपको ध्यान समझना है कि एक शख्स जिसके पैदा होने से पहले फरिश्तों ने आकर बताया था, उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, फरिश्तों ने कहा कि तेरे बेटा होगा। हालेलुया। और उसका तू नाम यूहन्ना रखना। अब आपको ध्यान समझना है कि वो बूढ़े बुजुर्ग है, लेकिन यूहन्ना सारी जिंदगी कहां पे रहा? बोलो कहां रहा? यूहन्ना सारी जिंदगी, लिखा है कि वो बियाबान में, वो जंगलों में रहा किया, क्योंकि वो क्या था? नजीर था। उसने अपने आप को अलग कर लिया, और उसके माँ बाप ने एक दफा भी उफ नहीं की कि हमारा इतने सालों बाद बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ है, और अब जो पैदा हुआ है उसी बेटे को हमने खुद अपने हाथों से बियाबान में छोड़ के आना है। क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो शरीयत के आलिम थे, वो शरीयत को जानते थे, और इतना जबरदस्त जानते थे कि बड़ी खुशी के साथ अपने बेटे को बियाबान में छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये वो शख्स है, ये एक बहुत बड़ा नज़ीर है, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसे कहाँ पे रहना है। उन्हें यह भी मालूम था कि शरीयत में एक शख्स आएगा जो मसीह की राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती कि खुदावंद की राह तैयार। उन्हें मालूम था कि हमारा बेटा प्रोफेटिकली, नबूवती तौर पर ये वो बेटा है जो मसीह की राह तैयार करेगा, और उन्होंने अपने बेटे को बियाबान में भेज दिया। क्या आज कोई माँ, क्या आज कोई भाई अपने आप को दे सकता है कि मैं अपने आप को मखसूस करूं? अपने आप को कुछ दिनों के लिए भी आप कर सकते हो। मैं ये भी बाइबल में ये भी है कि आप सारी जिंदगी के लिए अगर अपने आप को कुछ टाइम के लिए, जैसे अक्सर आज यहाँ पे तो नहीं होता, लेकिन हमारे गांव में हुआ करता था कि कुछ लोग ईस्टर के कुछ दिनों, चंद दिनों, हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, अक्सर 7 दिन या 3 दिन के लिए वो रोजे में रहते थे। और जिस दिन ईस्टर होता था, ईस्टर की इबादत भी वो चर्च में करते थे, उसके बाद वो अपने रिलेटिव से मिलते थे। कोई किसी से बात तक नहीं करता था, उनका खाना सिर्फ जाता था और कोई खाना किसी कोने में रखता था और वहां से वो उठाकर खा लेते थे और फिर वापस वहीं पे। अब समझ, सबको, पूरे गांव को मालूम होता था कि ये वो लोग हैं जो चर्च में बैठे हुए हैं, ये पूरा हफ्ता चर्च में ही रहेंगे। तो ये होता है अपने आप को नज़ीर होने के लिए अपने आप को अलग कर लेना। क्या आज कोई शख्स एक दिन के लिए भी आप कर सकते हो? ये आपकी अपनी खुद की मर्जी है। बाइबल में आपको 7 दिन का मिलेगा, बाइबल में आपको 30 दिन का भी मिलेगा कि लोगों ने इतने टाइम के लिए अपने आप को अलग कर लिया।
आज हम चाहें तो हम भी कर सकते हैं। पौलुस रसूल आपको 7 दिन के लिए आपको अलग मिलेगा कि उसने अपने आप को वो शरीयत को जानता था, उसके बावजूद वो मसीह हो गया। जब मसीह हो गया तो मसीह होने के बाद भी उसने अपने आप को मखसूस किया, अपने आप को ठहरा दिया कि उन दिनों में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे मालूम है आप अपने काम काज करते हो, हम एक दिन भी रख सकते हैं, हम एक दिन, एक महीने में एक दिन काफी है, इनफ है। हम किसी फंक्शन के लिए हम छुट्टी कर सकते हैं, तो खुदा के लिए एक दिन निकालना बहुत मुश्किल है। आप एक दिन, एक नाइट निकाल मतलब उस टाइम हमने कुछ भी नहीं करना, उस टाइम हमने अपना फोन भी यूज नहीं करना, मतलब इतना अपने आप को, क्योंकि आज हमारे पास देखे, हमारे पास वो मैं नहीं है, बात समझ रहे हैं, वो हम आज बाल नहीं रख सकते, लिट्टे नहीं रख सकते, लिखा कि उस नसीब को अपनी उस तरह नहीं लगाना होता था ताकि उसकी लिट्टे बहुत बड़ी हो जाए। हालेलुया। आज मुझे आपको ध्यान समझना है कि वो सारी जिंदगी वो यूहन्ना चाहता, तो वो क्या उस यूहन्ना के अंदर जज्बात नहीं है? क्या यूहन्ना हमारी तरह या आपकी तरह क्या नौजवान नहीं है? यूहन्ना भी गली में, बाजारों में, चौकों में खड़ा होकर वो सब कुछ वो भी कर सकता है, डीजे पार्टी वो भी कर सकता है, पर यूहन्ना उस टाइम जंगल में है। और उसकी, आप ध्यान से देखो कि उसकी खुराक लिखा है कि जंगली शहद और टिड्डियां थी। सिर्फ 2 चीजें सारी जिंदगी वो शख्स खाता था। उसने अपने आप को मखसूस कर लिया था कि ये चीजें भाई मैं खाऊंगा, ये चीजें मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वो आज के हिसाब से वो भी बर्गर खा सकता है, आप समझ रहे हैं? आज के हिसाब से वो भी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में, आज हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हो, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा कि नहीं, मैं अपने आप को महसूस करता हूं कि मैंने आज के बाद खुदा का कलाम सुनाना है, तो मैं हर जगह पे नहीं जा सकता, हर बंदे से मैं नहीं मिल सकता, हर शख्सियत से मैं नहीं मिल सकता। आपको ये पूरी समझ होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारी जिंदगी के लिए, अगर आप अपने आप को सारी जिंदगी के लिए, मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ संडे को सिर्फ चल जाते हैं, बस उसके बाद सारी वो पूरा हफ्ता अपने कमरे में बंद रहते हैं, पूरा हफ्ता वो अपने कमरे में बंद रहते हैं, कोई काम, दुनिया का कोई काम उन्होंने नहीं करना था, कोई भी काम, घर के काम भी वो नहीं करते, सिर्फ उन लोगों ने खाना खाना आता है और दुआ करनी होती है बस, और वो भी सिर्फ रोजा खोलने के लिए जितनी सी उनको खुराक चाहिए होती है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं, आज भी लोग नजीर हैं, कोई घर का साग पात खाते हैं, और वो आपको ध्यान समझना है कि आज उनकी चर्च लाखों में वो चर्चेस हैं। हालेलुया। वो चर्चेस फिर लाखों में चर्चेस हैं। आपको ध्यान समझना है, हम ब्लेस होना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं। एक औरत को मैं जानता हूं जिसने अपने बेटे के होने से पहले खुदा को कहा कि खुदा तू मुझे बेटा दे और वो बेटा मैं तुझे दे दूंगी, और वो बेटा भी नजीर था। हालेलुया। उसका नाम सैमुअल नबी है। आपको ध्यान समझना है कि उस लड़के के बारे में हम सारे जानते हैं, लिखा है कि जिस दिन उसे यह बरकत मिली, हालेलुया, आपको ध्यान समझना है, एक और शख्स जिसका नाम शमसून है, उसके बारे में भी हम जानते हैं, और उसके बाल बहुत बड़े थे, उसके लिए फरिश्ता ने कहा था कि तेरे बेटा होगा। हालेलुया। बाइबल में बहुत कम लोग हैं जिनके आने से पहले फरिश्तों ने आके बताया कि तुम्हारे बेटा होगा, तुम्हारे लड़का होगा, तुम्हारे औलाद होगी। और जब उसके कहा गया तो लिखा कि शमसून के पैदा होने से पहले उसकी मां को कुछ हदायत, अब देखिए आपको ध्यान समझना है कि नजीर कौन है? शमसून, लेकिन उसकी मां को कहा गया नजीर कौन है? शमसून। मतलब मान लो कि शमसून वो मैं हूं, नजीर मैं हूं, और मेरी मां को फरिश्ता आके कह रहा है कि तूने अंगूर की कोई भी चीज नहीं खानी, तूने मैं को पीना नहीं है। नजीर कौन है? नजीर मैं हूं, और हदायत किसको दी जा रही है? मेरी मां को। मतलब इसका मतलब यह है कि एक बड़ी शख्सियत को पैदा करने के लिए भी, हालेलुया,
हमारे माँ बाप का एक बड़ा रोल है, एक बड़ा करेक्टर है, एक खानदान का बड़ा रोल होता है कि एक खानदान एक बड़ी पर्सनैलिटी को, एक बड़े नजीर को पैदा कर पाए। आपको ध्यान समझना है कि आप नहीं जानते कि आप किस इंसान को जन्म देने वाले हो, आप किस शख्सियत के बाप बनने वाले हो, आपको मालूम नहीं है। क्योंकि अगर हम परहेज करेंगे, हम बहुत सारी चीजों को नहीं छुएंगे जिनको छूना जायज नहीं है, हम बहुत सारे ऐसे काम नहीं करेंगे जिनको करना हमारे लिए ठीक नहीं है, तो आप नहीं जानते कि आपकी आने वाली जो नस्लें पैदा होने वाली हैं वो बाबरकत और ब्लेसफुल नस्लें पैदा होने वाली हैं। आमीन। आप समझ पा रहे, लिखा है कि उनको मना किया कि पाकिस्तान की कोई भी पैदावार, पाकिस्तान होता है अंगूर का जो बाग होता है, पाकिस्तान की कोई भी चीज उन्होंने खानी नहीं थी और अपने बाल बढ़ने देने थे। और समसून के बाल, हम जानते हैं कि उसके बाल बहुत बढ़ गए थे और सारी जो ताकत थी उसके बालों में थी। लेकिन समसून जो नजीर था, जो खुदा का चुना हुआ शख्स था, लेकिन बाइबल फरमाती है कि उस शख्स ने गुनाह कर दिया, उस शख्स ने पाप कर दिया। लिखा है कि शाही महलों में जाकर वो ज़ियाफ़तों में जाता, शाही यानी बादशाहों की महफिलों में वो जाता था, वहां पे जाके वो खाने खाता था। शाही जो खाने होते हैं उनमें हर दुनिया के हर तरह के खाने होते हैं और वो वहां से जाके खाने खा रहे। फिर आपको समसून 3 जगहों पे मिलेगा और 3 जगह पे वो औरतों के साथ आपको मिलेगा। वो काम जो समसून को नहीं करने चाहिए थे, वो सारे काम समसून ने कर दिए। आज हमें भी ध्यान समझना है कि हम बरकत तो चाहते हैं, हम बढ़ना तो चाहते हैं, हम ब्लेसफुल तो होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी खिदमत ब्लेसफुल, पावरफुल हो। आपकी खिदमत पावरफुल होगी भाई, पर आपको थोड़ा सा केयरफुल चलना है, बस थोड़ी सी एहतियात के साथ चलना है कि हम कहां जा सकते हैं और हम कहां नहीं जा सकते। हालेलुया। आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि किसी कारण जो कुछ भी पीछे हुआ, मैं शुक्रगुजारी करता हूं उस सारे माहौल के लिए कि जिस माहौल की वजह से हम आज यहाँ पे हैं। हालेलुया। इग्नोर किया गया, जो कुछ भी हुआ, डिसहार्ट किया गया, उन सारी वजूहात की वजह से अकेले रहना जरूरी समझते थे हम। हालेलुया। बहुत सारा टाइम मुझे खुदा ने अकेला रखा, बहुत सारा टाइम कोई हमसे हमारा दोस्त नहीं बनना चाहता था, क्योंकि हम नहीं जानते थे ये खुदा की तरफ से हो रहा था। मुझे नहीं मालूम था ऐसा क्यों हो रहा है, पर मुझे आज इस बात की समझ आ रही है कि नहीं, खुदा का ये प्लान था। हम नहीं खुद अकेले रहना चाहते, हम चाहते थे, मैं चाहता था कि बड़ी भीड़ में रहना, लेकिन खुदा मुझे अकेला रखना चाहता था। और खुदा ने फिर अब हमारी सोच कुछ अलग थी, खुदा का प्लान कुछ अलग था। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप भीड़ में रहना चाहते हैं, आप लोगों में रहना चाहते हैं, आप पार्टी में रहना चाहते हैं, और खुदा आपके लिए माहौल क्रिएट करेगा। हालेलुया। कि इसलिए क्योंकि मुझे खुदा ने बहुत पहले चुना हुआ था, मेरे लिए वो ऐसे माहौल बना रहा था। पर आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को आज दे भी सकते हो। आज आप अपने आप को महसूस कर सकते हो कि नहीं, ये काम मैं खुदा के लिए करूंगा। हालेलुया। कि मैं खुदा के काम करूंगा, और खुदा के काम करने की कुछ हदायत हैं कि ये वाले काम फिर हम हालेलुया। फिर लिखा किसी कोई ऐसी चीज जो हराम चीज है, जो ममसू है, वो उसको भी नहीं छुएगा। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, बाइबल में लिखा है कि किसी हराम चीज को छूना तक नहीं है। खाना नहीं लिखा हुआ, छूना तक भी। हालेलुया। अब हमें ध्यान समझना है कि हमने छूना है या उन हराम चीजों को खाना है। हमने छूना है या उन हराम कामों को करना है। मुझे ऐसा लगता है कि सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं ये काम करूं। हमें मालूम है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे गलत काम हैं जो हो रहे हैं। वो एक अलग से सिचुएशन है। आपको मालूम पड़ रहा है,
कहीं ना कहीं से सुन रहे हो कि ये गलत काम हो रही है, पर हम वो कर नहीं सकते क्योंकि हम ममसू हैं। लिखा है कि तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो, तुम शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम। वही लफ्ज इस हमारे लिए मतलब हम क्या है, हम मुकद्दस हैं, हम पाक हैं। तो जो पाक होते हैं वो अपने आप को पाक ही रखें। इसका मतलब कि सिर्फ मैं नहीं, हर वो शख्स जो यीशु मसीह को मानता है, यीशु वो मानता है कि मैं खुदा मेरा बाप है, मैं उसका बेटा, वो मुकद्दस है, वो शाही कहनों का फिरका है। इसका मतलब कि आप सारे मुकद्दस लोग हो। और लिखा है कि हम शाही कहनों का फिरका है, मतलब जो बादशाही घराने होते हैं हम उसमें से हैं। बादशाह के बेटे हर शख्स से नहीं मिला करते। आप कभी वजीर आजम के बेटे से मिले हैं? हमने सिर्फ देखा ही होगा, सिर्फ वीडियो के ऊपर या इंटरनेट पे, कहीं ना कहीं टीवी पे हमने देखा होगा। हम कभी भी बादशाह के बच्चों से मिले नहीं होंगे। मतलब ये कि बादशाह के जो बादशाहों के जो नस्ल होती है, उनके जो बच्चे होते हैं वो हर इंसान से नहीं मिलते, हर जगह पे वो नहीं जाते। वो अलग बात है कि उनको बादशाह, क्योंकि वो बादशाह जो अपने बच्चों को किस तरह से टीच करें, पर मैं बताना चाहता हूँ कि हर इंसान हर पार्टी में वो नहीं जाता। जो अपने बच्चों को रियल में बादशाह बनाना चाहते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा बादशाह बने, वो अपने बच्चों को टीच करते हैं। मैं एक दिन उसकी जो सऊदी अरब में एक बादशाह है जो अभी 30 साल या 33 साल का, शायद इतने ही सालों का है, और वो दुनिया की पावरफुल कंट्री में अब वो शुमार होता है। लेकिन वो जो लड़का है, मैं बताना चाहता हूँ, उसे जो यूथ है ना, उस बादशाह को जो उसे यूथ बहुत पसंद करती है, क्योंकि उसने बहुत सारे नौजवानों के लिए काम किए। एक और बात कि उसके बाप ने उसे बड़े अच्छे तरीके से पहले जो इसे क्या कहते हैं, एक कोर्स होता है, उसका नाम कानून जिसे कहते हैं, कानून का कोर्स अपने बेटे को करवाया। वरना उसने बादशाह था, लेकिन उसे पहले कानून का पूरा कोर्स करवाया। उसने अपने बेटे को ऐसा बादशाह बना दिया है कि दुनिया में किसी बादशाह ने कानून को नहीं पढ़ा जितना उसने डीपली, क्योंकि वो अपने बेटे को एक जबरदस्त, एक सुपर पावर बादशाह बनाना चाहता है। मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो। आप अपने बेटे को पास्टर बनाना चाहते हो, अपने बेटे को वर्शिपर बनाना चाहते हो, अपने बेटे के लिए क्या डिजायर है आपके अंदर। अब आप चाहते हो कि आपका बेटा डॉक्टर बने, तो आप उसे, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले साल हमारे ही मुल्क में एक हमारी ही बेटी, क्रिश्चियन बेटी थी, जिसने CSS का इम्तिहान पास किया था और उसने पूरे टॉप करके रख दिया था। उसने थी वो क्रिश्चियन, और मैंने उसके मुंह से सुना है कि फेसबुक ये वाली चीजें तो उससे बड़ी दूर थी। इंटरनेट तो उससे बहुत दूर था, उसे सही से मालूम नहीं है, ढंग से मालूम नहीं है। और CSS मतलब बड़ी पढ़ी लिखी औरत है, ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स होता है, और ग्रेजुएशन शायद 14 पढ़ने के बाद वो कोर्स शुरू होता है। आप समझ रहे हैं? आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो? अगर डॉक्टर बनाना ना, उसे फोन कभी मत देना। उसे वो आपका बेटा पढ़ने वाला बेटा हो। डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है, पैसा तो चाहिए, पर उसके लिए स्टडी जो होती है ना, वो 8-8 घंटे आपका बेटा एक ही सब्जेक्ट पढ़े। हालेलुया। आप क्या बनाना चाहते हो अपने बेटे को? अगर नसीब उसे खुदा के लिए मखसूस करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए कुछ ट्यूशन भी रखो, ताकि वो स्कूल का काम करे, फिर ट्यूशन करे, उसके बाद एक ट्यूशन। जिस ट्यूशन की मैं बात करूं, वो ट्यूशन किसी ऐसे शख्स के पास रखो जो बाइबल को अच्छे से जानता है। हालेलुया।
اگر اسے خادم بنانا چاہتے ہو، میں بتانا چاہتا ہوں آپ اپنے بیٹے، آپ کے اندر یہ ڈیزائر ہے کہ آپ کے بیٹے پاسٹر بنے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شخص کے پاس سے شام کو 2 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے اگر 1000 روپیہ اس دوسرے اسکول کی ٹیوشن کر دے دو نا، تو 1000 روپیہ اسے بائبل کی اسٹڈی کے لیے بھی دے دو. ہاللیلویا. اسے اچھی جگہ پہ بھیجو، ہر روز بھیجو. آپ کا بیٹا میں آپ کو لکھ کے بھی دیتا ہوں ایسا زبردست پاسٹر بنے گا نا کہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ایسا نہیں ملے گا، صرف وہ بہت آپ کا بیٹا ہوگا. آمین. پر ہم اپنے بچوں کو ہم یہ سکل اپنے بچوں کے اندر ڈالتے نہیں ہیں کہ انہیں کچھ چیزوں کے لیے الگ اپنے آپ کو کرنا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم سمجھ پا رہے ہیں نا؟ اگر آپ نے ایک اچھا ورشپر بننا ہے تو اپنے آپ کو کچھ گھنٹوں کے لیے الگ رکھو دنیا سے. کچھ گھنٹوں کے لیے دنیا سے اپنے آپ کو الگ رکھو. ارنٹ سمل کو سب لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، صرف آپ نہیں جانتے، پوری دنیا جانتی ہے ارنٹ سمل کو. لیکن چند گیت اس کے آپ کو انٹرنیٹ میں ملیں گے، پر جانتے اس کو پوری ارنٹ سمل ایک. اور وہ ساری رات اپنے آپ کو الگ رکھتا تھا پوری دنیا سے. آپ کہیں گے ہم بھی ساری دنیا سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں. آپ سوتے ہیں، وہ سوتے نہیں تھے. وہ ساری رات اپنے آپ کو خدا کی حضوری، خدا کی پریزنس میں رکھتے تھے کہ نہیں میں نے ایک اچھا ورشپر بننا ہے. اور جتنے آج لوگوں کو آج گلی محلے میں آپ جاؤ، ہر چرچ میں آپ کو گانے بجانے والے ملیں گے. یہ ایک بڑا ریوائیول، گانے بجانے والا ورشپ کا جو آج ریوائیول ہے پاکستان میں، یہ ارنٹ سمل کی وجہ سے ہے. پورے انڈیا پاکستان میں جو ریوائیول گانے بجانے کا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف ارنٹ سمل کی وجہ سے. ہمیں کسی کو پتا نہیں تھا کہ خدا کے لیے بھی گایا جاتا ہے اور کیسے گایا جاتا ہے. یہ شخص سکھا کے گیا لوگوں. ہاللیلویا. اپنے آپ کو دے دو بھائی، دے دو. ہاللیلویا. دے دو اپنے آپ کو کچھ ٹائم کے لیے. وہ بھی دن بھر اپنے کام کاج کرتے تھے ملسب، لیکن وہ ساری رات خدا کو دیتے تھے. ہاللیلویا. آپ کتنا ٹائم خدا کو دے سکتے ہو؟ اپنے اس ٹائم کے لیے آپ نذیر ہو. اس ٹائم کچھ بھی نہیں آپ کرو گے. نیور کوئی کام. اپنے گھر والوں کو بتا دو کہ اس ٹائم جب یہ کام کرو تو مجھے کوئی کام مت کہنا. اپنے سارے گھر والوں کو کام بتا دو، کوئی جتنے کام ہے مجھے بتاؤ، میں جلدی سے کر دوں، تاکہ یہ والا جو ٹائم ہے جو خدا کا ٹائم ہے، اس ٹائم مجھے کوئی ڈسٹرب. آمین. ہم نذیر ہیں، ہم مقدس ہیں، ہم الگ لوگ ہیں. اپنے آپ کو الگ کرو. ہاللیلویا. پالوس رسول کہتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو. ان میں سے نکل کر اپنے آپ کو لکھا، کن میں سے نکل کر. ہاللیلویا. اپنے آپ کو کیا کرو؟ الگ کرو. آپ کو بڑے دھیان سے آج اس میسج کو سیکھنا ہے. لیکن ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو، تو میں تم کو قبول کر لوں گا. ہاللیلویا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقدس لوگ ہیں، ہم الگ لوگ ہیں. ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں، ہم دکھتے ضرور ہیں. آپ بھی وہی، آپ کے کھانے بھی وہی ہیں. ہمارے گھروں میں مطلب ایک ہی ملک میں رہتے ہیں تو لباس بھی ایک جیسا ہے، تو سبزیاں بھی ایک جیسی ہیں، لیکن ہم ان جیسے کام نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. مقدس لوگ مقدس کام کرتے ہیں. اور بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے نا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے نا، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے. لیکن اسے آپ کو بتاؤ وہ اپنی جیب میں کتنے پیسے ڈال سکتا ہے؟ مان لو اگر ہے بھی تو وہ اپنی جیب میں 1 لاکھ 2 لاکھ، کیونکہ ایک جیب میں کتنے سارے آپ پیسے ڈال سکتے ہو. لیکن اگر اس نے ایک آج نئی مرسڈیز خریدنی ہے نا، بڑی والی، تو وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی ہے نا. بھائی پرانی 2 کروڑ 3 کروڑ کی آ رہی ہے تو نئی کتنے کی ہے گی؟ کیوں بھائی؟ ہے نا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اسے پسند آ گئی نا، تو وہ یہ نہیں دیکھا کہ میری جیب میں کتنے، بس اسے معلوم ہے کہ باپ کی جیب میں
एक बादशाह के बेटे की जो लाइफ स्टाइल होता है ना, वो अपने बाप की वजह से होता है। तो हमें भी भरोसा आना चाहिए कि मेरा बाप कौन है, तो हमारा लाइफ स्टाइल भी ऐसा ही। आमीन, हालेलुया। हमें भी उस तरह से जीना चाहिए। खुद हमारा बाप पाक है, मुकद्दस है, तो हमें भी मुकद्दस होना चाहिए। यीशु सारी रात दुआ करते थे। आपकी जेब में पैसा है या नहीं, आपके बाप की जेब में बहुत सारा पैसा है। हालेलुया। क्योंकि मैं आसमानी बाप का बेटा हूं, तो उस आसमानी बाप के पास बहुत कुछ है। मुझे पहले उसकी तरह काम करनी है। मुझे भी सारी रात कहां पे होना चाहिए? दुआ में होना चाहिए। आज के बाद आप सारी रात दुआ नहीं कर सकते। मुझे मालूम है आप बड़े सख्त आपके काम है, आपकी ड्यूटी बड़ी सख्त होती है, हार्डली होती है, लंबा टाइम होता है। आप सारी रात नहीं कर सकते, आप 2 घंटे कर लो, पर कुछ करना जरूर। अपने आप को कुछ घंटों के लिए अपने आप को मखसूस कर दो। जो अपने आप को, जिनके पास कुछ भी नहीं करने को, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को पूरा वीक रख दो खुदा के लिए। हालेलुया। अगर कोई फिर भी कुछ नहीं कर सकते तो सारी रात के लिए अपने आप को रखा करो। हालेलुया। कुछ टाइम के लिए अपने आप को मखसूस करो। हम नज़ीर हैं, हम मुकद्दस लोग हैं, हम पाक लोग हैं। हालेलुया। कितनों को आज समझ आई कि हम नज़ीर हैं, हम मुकद्दस लोग हैं? आमीन, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि एक नज़ीर, एक मुकद्दस इंसान वो काम नहीं कर सकता जो बाकी लोग करते हैं। हालेलुया। आइए हम खुदा के हुजूर झुकेंगे और दुआ करेंगे, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करेंगे। जीसस।